Good morning, everyone. Uh, Today we have among us Dr. Dhananjay Mohan. He's a very senior IFS officer and presently holding the post of PCCF in Uttarakhand. He is an officer of 1988 batch and more than approximately 34 years of experience. Uh, Sir has been involved in wildlife management training and research for more than 3 decades, and he has managed several protected areas in Uttarakhand and Uttar Pradesh, and he has also written several protected area management plans. Sir has been a excellent bird watcher, and he has documented several birds and their nesting sites and their distribution pattern, especially focusing on the Himalayas. Sir has been chief wildlife warden of lately in Uttarakhand, and then he has been director of WIA, and presently he is uh, posted as MD Forest Corporation in Uttarakhand. Sir, the audience is primarily consisting of the field functionaries of Forest Department, primarily of Great Himalayan National Park, and we also have got two batches of range officer trainees from Himachal Pradesh Forest Academy, Sundarnagar, uh, who will be listening to your good self. And the topic that has been uh, chosen for this talk is managing World Heritage Sites in Himalayas and experiences from Uttarakhand. I would like to inform the audience that uh, Great Himalayan National Park is celebrating its uh, anniversary for the inscription as World Heritage Site by UNESCO for this Great Himalayan National Park, which was inscribed in 2014 as a World Heritage Site. And this is almost 9 years, and we are having a 2 day larger event of academic and cultural event. And we would have been grateful had it been possible for Sir to have been present there in person. But still, we insisted that we do not miss on, since because of his busy schedule, he is not able to come. So we still insisted him and requested him, and he has been kind to give us a slot from his busy schedule to share his views on the World Heritage Sites and his experiences from Uttarakhand. Sir, this is a brief introduction about the audience, sir, and your kind self, sir. Sir, now I hand over the stage to you, sir. Thank you, sir. Just one question before I start, Nishant. Sir. The officer trainees from Sundarnagar, which Sir. state do they belong to? Any idea? Sir, they belong mostly, there is a big batch from Uttarakhand, Uttar Pradesh, and the remaining, actually, I've forgotten, actually. I think somebody from the academy can introduce. Anyway, I've got an idea. So yes, sir. There is a larger chunk from Uttar Pradesh, sir. And Uttarakhand, right? Uttarakhand is also there, sir. Because the batch had come here. There are also some people from Tamil Nadu and Chhattisgarh, and some from UP, Kerala, and Andhra Pradesh. All right, all right. Andhra Pradesh or Arunachal Pradesh? Arunachal Pradesh, I guess. All right, good. That's also a Himalayan state. Right. So, all right. Thank you so much, Nishant, and really wonderful to be talking about an area which has been always very close to my heart. तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मैनेजमेंट का, और विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं राजीव कुमार साहब, जो कि मेरे बैचमेट भी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं. तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं हेलो किस Just a minute, sir. I'm just muting all of them. Just a minute. You can see. Just a minute. Just a minute.
एक मिनट सर, could you please unmute yourself, sir? ओके फाइन। Yes, sir. हाँ, तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के मैनेजमेंट का, और विशेषकर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं हिमाचल प्रदेश के राजीव कुमार साहब, जो मेरे बैचमेट और करीबी मित्र भी हैं, तो कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में आपसे अपनी जानकारी और विचार साझा कर सकूं जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। तो जब ये बात हुई कि मुझे कुछ बोलना है, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले उन क्षेत्रों के बारे में बात करूं जो कि जिनसे मेरा बहुत बड़ा जुड़ाव है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन क्षेत्रों की मैं बात करने जा रहा हूं वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और अभी हम जो कार्यक्रम चल रहा है, जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क द्वारा आयोजित किया जा रहा है, वो भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने की एनिवर्सरी पे किया जा रहा है। तो जो हिमालयन स्टेट्स हैं हमारी, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और जो एसोसिएटेड स्टेट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनमें मैं कहूँगा कि ये अद्वितीय हैं, क्योंकि इनकी जो जैव विविधता है वो पूरे विश्व में मशहूर है। पूरे विश्व में लोग हिमालय की जैव विविधता के बारे में चर्चा करते हैं, उसके संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हिमालय में जो प्रकृति का संरक्षण है उसको एक नए आयाम पे ले जाया जाए। और मैं कहना चाहूँगा कि हिमालयी क्षेत्रों में जो जैव विविधता संरक्षण है, विशेषकर जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो जैव विविधता संरक्षण है, वो उतना नहीं निखर पाया जितना कि तलहटी वाले क्षेत्रों में या भारत के बाकी हिस्सों में। तो ये मैं कहूँगा एक वरीयता में ऊपर होना चाहिए कि हम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कैसे संरक्षण करें और कैसे वहाँ की जैव विविधता को लगातार लंबे समय तक संरक्षित रखने का प्रयास करें। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि जो मैनेजर्स हैं, जो प्रबंधक हैं इन क्षेत्रों के, वो आपस में जुड़ें और आपस में चीजों को डिस्कस करें, क्योंकि बहुत कुछ लर्निंग जो है एक दूसरे के सक्सेसफुल एग्जाम्पल से होती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि जब मुझे ये छोटा सा व्याख्यान देने की बात सामने आई, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में साझा करूं, ताकि चाहे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का प्रबंधन हो या आप में से जो भी लोग, विशेषकर जो हमारे अधिकारी हैं, जो प्रशिक्षु अधिकारी हैं सुंदरनगर एकेडमी के, वो अभी देश के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे, तो वो भी कुछ ऐसी चीजें साथ लेके जाएं। तो मैं आज के इस व्याख्यान के लिए मैंने छोटा सा प्रस्तुतिकरण बनाया है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। ये दिखाई पड़ रहा है प्रस्तुतिकरण? सर दिख रहा है सर। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, मैं उत्तराखंड के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। और ये पहली स्लाइड ही आपको उत्तराखंड की जैव विविधता, जो कि काफी हद तक हिमाचल के साथ ओवरलैप करती है, उसका एक सिंबॉलिक चित्रण है। ये हमारा जो राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य वृक्ष बुरांस या रोडोडेंड्रन आर्बोरियम,
और राज्य पशु मस्क डियर, कस्तूरा मृग। और सर प्रेजेंटेशन मोड में लेंगे सर इसको, लार्जेस्ट स्क्रीन। प्रेजेंटेशन मोड में ही डाला है। अच्छा अच्छा, इसमें वो नहीं छोटा दिख दिख रहा रहा है एक्चुअली सर। सर है? हाँ ये वाला सर। अब हुआ नहीं? अच्छा नहीं हुआ सर, इसको थोड़ा फिर जूम कर दीजिए सर, पता नहीं हमारे पास वो उसी में दूसरे फॉर्मेट में ही दिख रहा है सर ये ना, आपके इसमें से ही दिख रहा मैं तो प्रेजेंटेशन मोड में डाल रहा हूँ इसको। है। अच्छा सर इसको फिर वापस करके थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर, एक्चुअली हमारे पास वो नॉन प्रेजेंटेशन मोड में ही दिख रहा है ये। ये बाकी जगहों पे भी, सुंदरनगर में भी नहीं नहीं दिख रहा है प्रेजेंटेशन मोड में? कोई कंफर्म कर पाएगा? सर एक बार प्रेजेंटेशन मोड, अच्छा पर मेरे ख्याल से उन्होंने तो क्लिक तो प्रेजेंटेशन मोड में ही किया हुआ है। पहले प्रेजेंटेशन मोड पे ले आके बैक फिर उसको शेयर करेंगे तो वो आगे जाएगा मेरे से। दिख रहा है? अब तो बिल्कुल ही चला गया सर। ओ वेट अ मिनट। अब तो बिल्कुल- अब आया क्या? सर वो मतलब साथ में वो जो साइडों में अदर स्लाइड्स है। अदर स्लाइड्स हैं सर, वो भी दिखाई दे रही है ना। नहीं, अब प्रेजेंटेशन मोड में नहीं आया? प्रेजेंटेशन तो दिख रही है सर ना, वो साइडों में जो फुल स्क्रीन नहीं मोड नहीं, होता है ना सर। फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं सर, फुल स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। मैं तो फुल स्क्रीन कर रहा हूँ इसको, बट एनीवे। हाँ ऐसे करके। चलिए फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा। सर 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 एनीवे, मैं जस्ट आपको यहाँ की जैव विविधता के जो सिंबल्स हैं वो बता रहा था। हमारा राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, सोसोरिया ओबलाटा, और सर मोनाल पक्षी, और बुरांस या रोडोडेंड्रन आर्बोरियम हमारा राज्य वृक्ष, और कस्तूरा मृग जो कि हमारा राज्य पशु है, राज्य वन्य जीव। और ये नंदा देवी पीक का चित्र है जो कि भारत की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है। शुरू में इसको सर्वाधिक ऊंची माना जाता था, लेकिन जब सिक्किम को भारत में विलय हुआ 1974 में, तब कंचनजंगा पहले स्थान पे आई और नंदा देवी दूसरे स्थान पे आई है 7,817 मीटर। तो ये एक सिंबल है पूरे उत्तराखंड के लिए, और धार्मिक महत्व भी है नंदा देवी का बहुत ज्यादा। और इसी के चारों तरफ नंदा देवी नेशनल पार्क बना हुआ है, जो कि 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। तो बहुत पुराना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इससे पूर्व 1985 में सुंदरबंस, मानस, काजीरंगा, कुछ और साइट्स हुए थे। और लेटेस्ट एडिशन हमारा प्योर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका जीएसएनपी ही है। कंचनजंगा भी बना, लेकिन वो मिक्स साइट है, नेचुरल और कल्चरल दो। तो ये मैंने सीधा जो इनकी जो वेबसाइट है उससे उठाया है कि जो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कैसे जुड़ा ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, वो उनके बारे में कैसी सुंदर भाषा इस्तेमाल की गई है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का जो वेबसाइट है उसमें। और जो शब्द लिखे हैं बहुत ही सही शब्द हैं इस क्षेत्र के का जिक्र करने के लिए, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए। रिमोट माउंटेन विल्डरनेस, तो एकदम टोटली वाइल्ड एरिया है ये, और रिमोट भी है। और मैं भी आपको बताऊंगा क्यों ऐसा है। Protected on all sides by spectacular topographical features including glaciers, moraines and alpine meadows. और इसी तरह ये नंदा देवी की बात थी। और वैली ऑफ फ्लावर्स तो जैसा नाम ही से प्रतीत होता है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग गए भी हों, नाम से ही वो इतना अट्रैक्टिव जगह लगती है। और मुझे बहुत सौभाग्य है कि मेरी पहली जो तैनाती थी अपने करियर की 1991 में एस DFO, तो ये दोनों ही क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में थे, वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी। और बाद में मुझे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, उसका
प्रथम मैनेजमेंट प्लान लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ 1992 में। 30 वर्ष हो चुके हैं तब से, और बहुत कुछ हुआ है इस बीच, जो मैं अभी अगले आधे घंटे में आपके साथ साझा करूंगा। तो वैली ऑफ फ्लावर्स तो जैसा नाम बताता है, ये फूलों की घाटी हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी एक बहुत अद्वितीय क्षेत्र है, और जिस तरह की वनस्पति और पादपों की जो विविधता यहाँ मिलती है वो बिल्कुल अद्वितीय है। और जो इसकी खूबसूरती है, जिसकी वजह से बहुत से पर्यटक इतने हाई एल्टीट्यूड एरिया में केवल प्रकृति देखने के लिए शायद ही किसी नेशनल पार्क में लोग आते हों। ट्रैकिंग के लिए लोग जा सकते हैं कई नेशनल पार्क्स वगैरह में, लेकिन विशेषकर हमारी जो प्रकृति को देखने के लिए अगर कहीं जाते हैं तो मेरे ख्याल से जितना वैली ऑफ फ्लावर्स में जाते हैं, वो भी एक बहुत सीमित सीजन पे। ये वैली केवल जून से अक्टूबर के प्रारंभ तक खुली रहती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई का क्षेत्र है। तो वैली भी बहुत अद्वितीय क्षेत्र है, और ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं, मेरे ख्याल से इस विवरण में हम अभी नहीं जाएंगे। और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो फ्लोरा और फौना रिलेटेड है। तो जो फ्लोरा है, मुख्य दो क्षेत्र बहुत ऊंचे क्षेत्र हैं, और नंदा देवी का जो मिनिमम एल्टीट्यूड है वो करीब 2000 मीटर है, लेकिन वो जाता है 7800 मीटर तक, और वैली ऑफ फ्लावर्स का प्रारंभ ही 3000 मीटर के ऊपर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने कितने ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं ये। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें कुछ यहाँ की और अद्वितीय चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन जितनी यहाँ की जैव विविधता इंटरेस्टिंग है, उतनी ही यहाँ की इंटरेस्टिंग है, और वो मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आगे मैं कुछ चित्र में दिखाता हूँ, बल्कि मैं चित्र पहले दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस चित्र में आपको, हाँ, ये गूगल सैटेलाइट इमेजरी है, और ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है ये नंदा देवी की सीमा है। और अगर आप इस लाइन के अलोंग चलें तो ये एक बहुत हाई रिज है। रिज आई एम श्योर आप लोग सब समझते होंगे, तो जो वाटर डिवाइड भी कह सकते हैं। और ये जो रिज है, एक सॉसर शेप्ड वैली है, लगभग गोल सी है वैली, जैसे आपकी कप प्लेट में प्लेट होती है कुछ कुछ वैसी। और इसकी जो रिज है ये बहुत ऊंची है, औसतन 6000 मीटर ऊंची, और इस पे जो पीक्स हैं उनमें से कई पीक 7000 मीटर से ऊंची हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक अभेद्य वो है, बाउंड्री है नंदा देवी नेशनल पार्क की। और ये प्रकृति का कुछ एक विचित्र सा क्रिएशन है, जिसमें इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन गया जहां एक गोल सी रिज है जो कि बहुत ज्यादा ऊंची है। आप सोच सकते हैं, हम 7 मीटर की बात कर रहे हैं, 7000 मीटर की कई, यहाँ त्रिशूल पीक है, यहाँ नंदा देवी ईस्ट है, त्रिशूल पीक 7120 मीटर ऊंची है, नंदा देवी ईस्ट जो है वो 7434 मीटर ऊंची है, और इनके मध्य में एक छोटी रिज निकल के यहाँ पे नंदा देवी पीक है। क्या आपको कर्सर दिखाई पड़ रहा है? एनीवे, तो हाँ, तो और इसकी विशेषता ये, क्योंकि ये गोल है तो इसके अंदर जितना भी पानी या बर्फ जो भी पड़ेगी उसको कोई रास्ता तो निकलना ही है, और वो रास्ता है ऋषि गंगा नदी के माध्यम से। तो ये ऋषि गंगा नदी जो है, जो इसमें कई ग्लेशियर्स आप देख सकते हैं फीड करते हैं, और ये बहुत छोटी नदी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहते हुए और लाता गंगा धौली गंगा में मिल जाती है, और धौली गंगा बाद में अलकनंदा में मिलती है, और आपको मालूम ही अलकनंदा और भगीरथी मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। तो ये सारा जल गंगा का जलग्राही क्षेत्र है, और ये केवल जहाँ पे ऋषि गंगा इस विशेष घाटी से निकलती है, वहीं पे कुछ निचली ऊंचाई के क्षेत्र हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है। तो बाकी जितना भी आप ये सफेद क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा 3 मीटर से ऊपर का, जो बढ़ते बढ़ते 7800 मीटर तक पहुंच जाता है। तो
इसके कारण क्या था कि इस क्षेत्र में घुसना एक बहुत टेढ़ी खीर थी, और ब्रिटिश पीरियड में बहुत एक्सप्लोरर्स हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। तो ब्रिटिश पीरियड में बहुत से एक्सप्लोरर्स थे, कई लोगों ने नए नए क्षेत्र खोजने की कोशिश की। तो उस दौरान कई लोगों ने कोशिश की कि हम भी इस अभेद्य प्राकृतिक किले को के अंदर जाएं, लेकिन ये रिज इतनी ऊंची थी और इसका एक्सेस इतना डिफिकल्ट था कि लोग इसमें घुसने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। आप सोचेंगे कि 2000 मीटर का ये क्षेत्र है तो यहां से बड़ी आसानी से हम घुस सकते हैं, लेकिन ये जो गॉर्ज है, ये जो ऋषिगंगा जो नदी काटती है इस वैली को, ये बिल्कुल स्टीप गॉर्ज है। और नदी के किनारे भी आप नहीं चल सकते, क्योंकि पहाड़ी नदियां, आपको जितनों को तजुर्बा होगा, पहाड़ी नदियां कभी दाईं को चली जाती हैं, कभी बाएं को चली जाती हैं, और नदी में पानी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप नदी के किनारे चलते चलते अंदर चले जाएं। तो बहुत मुश्किल थी यहाँ पे अंदर जाना। और आज भी अगर नदी के अलोंग लोग इस वैली में घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको कई जगहों पे टेम्पररी पुल बनाने पड़ते हैं पेड़ों को गिरा के। तो इसलिए इसमें घुसना बहुत मुश्किल था। फिर भी जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो एक्सप्लोरर्स होते हैं और वो प्रयासरत रहते हैं। तो 1934 में इन दोनों ने, एरिक शिप्टन और टिलमैन ने, अल्टीमेटली इस घाटी में प्रवेश किया। और जो ऋषि गंगा का जो गॉर्ज है, जो बहुत स्टीप है मैंने बताया, उसके माध्यम से अंदर जा पाए। और उसके बाद जब एक बार उन्होंने ये रास्ता ढूंढ निकाला, तो आप देख ही सकते हैं कि ये ऐसी घाटी है जहां चारों तरफ जो पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, वो 7000 मीटर के आसपास पहुंचती हैं। कुछ चोटियां 7000 मीटर से ऊपर हैं, कुछ थोड़ी सी नीचे हैं। तो ये जो माउंटेनियर्स थे उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव एरिया था। और इन पीक्स में बाहर की तरफ से चढ़ना अपेक्षाकृत मुश्किल था। तो ये अंदर से, जो ये आज जो नंदा देवी नेशनल पार्क बना हुआ है, इस जो क्षेत्र के अंदर से जाके इस पे चढ़ने का प्रयास करने लगे, और तेजी से यहाँ पे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन शुरू हो गए। तो 1900 जब सरकार को लगा, उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी, कि इसका संरक्षण भी आवश्यक है, तो 1939 में उन्होंने इसको एक सेंचुरी बना दिया। लेकिन उस समय के सेंचुरी के नियम कानून बहुत शिथिल थे, इससे कोई बहुत विशेष फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सेंचुरी उस समय भारतीय वन जीव अधिनियम था ही नहीं। और सेंचुरीज जो हैं आमतौर पे, उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश था तब, उत्तराखंड तो बना भी नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में एक यूपी फिशिंग एंड हंटिंग रूल्स होते थे सरकार के, उनके तहत सेंचुरीज बनाई जाती थी। और उसमें केवल ये होता था कि थोड़ी हंटिंग वंटिंग रेगुलेट हो जाती थी, बाकी बहुत बड़ा कोई ऐसे पनिशमेंट नहीं थे, तो कंट्रोल कमजोर था। तो लगातार माउंटेनिंग चलती रही, और स्थिति ये आ गई कि आजादी के बाद भी ये चलता रहा। और जैसे जैसे दुनिया में भरे आने लगे, क्योंकि नंदा देवी पीक चढ़नी हो तो ये एरिया, त्रिशूल चढ़ना हो तो ये एरिया, नंदा देवी ईस्ट चढ़ना हो, ये कलंका चढ़ना हो तो, चंगभंग चढ़ना हो तो, मकराम चढ़ना हो तो, इतनी पीक्स थी। ज्यादातर पीक 6,500 से 7,500 मीटर के बराबर। तो ये बहुत चैलेंजिंग एरिया था। तो माउंटेनियर्स बहुत ज्यादा आए यहाँ पे। और जब माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन होते हैं तो माउंटेनियर्स तो गिनती के होते हैं, लेकिन उनका जो सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। दुनिया भर के लोग उनके सामान ले जाते हैं, उनके जाते हैं, क्योंकि पीक चढ़ने के लिए तो हर तरह का इक्विपमेंट भी चाहिए होता है। तो पूरी भीड़ चलती थी। और वो भीड़ वो जमाना था जब वो भीड़ अंदर जाएगी, चाहे वो स्थानीय लोग हों, चाहे वो नेपाली शेरपा हों, वो लोग उस जमाने में वो कल्चर तो था नहीं कि वो कुछ आधुनिक चीजें ले जा रहे हैं। वहीं की लकड़ी काटी, वहीं जलाया, ठंडे इलाके थे, और गंदगी की। जो विदेशी पर्यटक आ रहे थे वो अपने साथ पैक्ड फूड लाते थे टिन्स में, वो टिन वहीं फेंक के, क्योंकि पहाड़ों में जितना भार लेके चले उतना कष्ट है, से टिन खाली होते गए, वहीं छोड़ के चले आए। तो नंदा देवी नेशनल पार्क का इतना ऊंचाई का एरिया एक गार्बेज डंप में परिवर्तित होने लगा। वहाँ का जो वेजिटेशन था, मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीजें हम आज भी देख रहे हैं अपने ऊंचाई वाले इलाकों में। तो इसलिए ये एक ऐसा चैलेंज है प्रबंधकों के लिए कि किस तरह से हम प्रदूषण को कम कर सकें इन क्षेत्रों में, कैसे मानवीय दबाव को कम कर सकें। तो हम लोग फिर ये सब जगह रहा। फिर जब सरकार को
ऐसा फील हुआ कि तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो 1982 में अंततोगत्वा इसको नंदा देवी नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। 624 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, और एक अचानक यहाँ पे, और जैसे ही नेशनल पार्क बना वैसे ही यहाँ माउंटेनियरिंग पे टोटल बैन लग गया। वैसे नेशनल पार्क्स में भी पर्यटन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो माउंटेनिंग चल रही थी उससे यहाँ की प्रकृति का बहुत नुकसान हो रहा था, इसलिए सरकार ने साथ साथ बैन भी कर दिया। फिर इसके बाद जब नंदा देवी पे फोकस आया तो बहुत चीजें हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम थी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना। समय के में इसलिए मैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों में से काफी लोगों को मालूम होगा, और जो हमारे प्रशिक्षु हैं उन्होंने अगर पढ़ा नहीं होगा तो आगे पढ़ लेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व मैं बहुत एक चंद लाइनों में बता देता हूँ कि बायोस्फीयर रिजर्व एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बने थे, और इसमें ये कहा गया कि बड़े क्षेत्र हम चुने संरक्षण के लिए जिसमें मनुष्य भी हो और प्रकृति भी हो, और उसमें एक कोर जोन हो जो बिल्कुल अछूता रहे मनुष्यों से, और चारों तरफ जो है उसके मानवीय क्षेत्र रहें, जहाँ पे वो अपनी पारंपरिक तरीकों से अपना जीवन यापन करें। इस तरह का एक कंसेप्ट था। तो बायोस्फीयर रिजर्व जब बना तो इसका कोर एरिया नंदा देवी नेशनल पार्क बना, और चारों तरफ का क्षेत्र जिसमें उस समय मात्र 16 गांव थे, वो इसका बफर जोन बना। तो लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन और लगभग 650 वर्ग किलोमीटर का कोर। तो और एक और शब्द इस्तेमाल होता है बायोस्फीयर रिजर्व में कि जो कोर जोन है वो इकोलॉजिकल बेंचमार्क बने। इकोलॉजिकल बेंचमार्क मतलब कभी भी आपको किसी वैसे ही क्षेत्र से उसका कंपैरिजन करना है तो वो क्षेत्र होंगे जो बिल्कुल प्राकृतिक हैं, मनुष्य से अछूते हैं, और उनके उनके स्तर पे कि हमारा कोई भी क्षेत्र कितना खराब हो चुका है, कितना डिग्रेड हो चुका है, वो इस बेंचमार्क से कंपेयर करके हमें पता चल सके। तो मैं कहूँगा ये बहुत अद्वितीय चीज़ है कि 1982 से आज हो गए हैं 40 साल। 40 साल से ये क्षेत्र पूरी तरह से मानवीय किसी भी तरह के व्यवधान से अछूता है, और मुझे नहीं लगता हिमालय में और कोई भी क्षेत्र होगा जो कि मानवीय किसी भी तरह के इंटरवेंशन से इतना बड़ा क्षेत्र 650 स्क्वायर किलोमीटर का मानवीय किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि से अछूता हो। तो ये बड़ी यूनिक चीज है नंदा देवी की। और बाद में कालांतर में सन 2000 में इस बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया और बढ़ा दिया गया, 2200 से सीधा 5800 कर दिया गया, और वैली ऑफ फ्लावर्स इसका दूसरा कोर बना, सेकंड कोर। नंदा देवी नेशनल पार्क पहला कोर है, और वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत छोटा नेशनल पार्क है, मात्र 87.5 वर्ग किलोमीटर का। ये कुछ पुराने मैप्स हैं और इसमें कुछ कुछ पीक्स के नाम लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। मृगथुनी, मंगतोली, ये 6800 मीटर ऊंची है, ये 6803, 6845, त्रिशूल 7120, नंदा देवी 7434। तो इस तरह की बड़ी बड़ी पीक्स हैं इस पूरे रिम में। और अगर आप देखें तो इसका निचला हिस्सा है, इसको पुराने नाम से बोलते थे आउटर सेंचुरी, और इसको इनर सेंचुरी। तो आउटर सेंचुरी जो है अपेक्षाकृत नीचे एल्टीट्यूड का है, करीब 2000 से 3500 मीटर, और उसके बाद ये जो बड़ा क्षेत्र है ये पूरा का पूरा आपका 3500 मीटर से ऊंचा क्षेत्र है। इसमें कुछ ग्लेशियर्स वगैरह दिखाए गए हैं इसके नंदा देवी के, और ये काली लाइन जो है ये आपकी ऋषिगंगा नदी है। बहुत छोटी नदी है लेकिन इसमें इतने ग्लेशियर्स का पानी आता है, इसलिए काफी छोटी है लेकिन पानी इसमें बहुत है। तो आप देख सकते हैं त्रिशूल ग्लेशियर, नॉर्थ ऋषि ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर, चंगबंग ग्लेशियर, इस तरह के रामणी ग्लेशियर। तो बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो इसमें फीड करते हैं। तो एक बड़ा विचित्र और बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है ये। तो मैंने बताया आपको कि नंदा देवी नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा जो डैमेज हुआ उसकी वजह से फिर इसको बैन कर दिया गया। और जो बैन लगाया गया 1983 में, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उस जमाने में यूपी ही था। तो 10 साल के लिए बैन किया गया, और ये कहा गया कि इसकी रीओपनिंग जो है, दोबारा से अगर बैन खुलेगा तो वो तभी होगा अगर एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जाके पार्क में जाके स्थिति देखें कि अब वहाँ के पार्क की जो
प्रकृति है वो संवर गई है दोबारा से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वो था, बिंदु था कि ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद माउंटेनिंग स्वतः खुल जाएगी, लेकिन ये है कि जब तक उसका एक प्रॉपर असेसमेंट नहीं होगा तब तक ये माउंटेनिंग नहीं खुलेगी। तो ये इससे एक चीज ने जन्म लिया जिसको आजकल हम लोग डिकेडल एक्सपीडिशंस बोलते हैं। तो जैसा कि उस मीटिंग में, बैठक में निर्णय हुआ, एक्सपीडिशन जो गया, अब ये क्षेत्र इतना विषम है कि यहाँ पे आम ट्रेकिंग के मोड से आप नहीं जा सकते हैं, आपको एक्सपीडिशन मोड में ही आना पड़ता है। तो ये नंदा देवी बेस कैंप तक गया था, तो ये घाटी में ही रहा मुख्यतः, किसी पीक पे नहीं चढ़ने का प्रयास किया गया और उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। लेकिन इसकी विशेषता ये थी कि इस एक्सपीडिशन में हमारे जो समस्त अग्रणी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, इस तरह के सभी इंस्टीट्यूट्स के एक्सपर्ट्स इस एक्सपीडिशन में गए थे। और ये एक्सपीडिशन कोई आसान एक्सपीडिशन नहीं होता है, क्योंकि आप करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं और रास्ते नहीं हैं, बहुत विषम क्षेत्र है, 10 साल से कोई गया नहीं था। तो पूरा इसमें सेना और आईटीबीपी का पूरा सपोर्ट लिया गया और इस तरह से इवन हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए गए कुछ लोगों को जिनको जल्दी निकालना था बाहर, उसके लिए। तो 1993 में ये चीजें थोड़ी रेयर थी, आज तो हेलीकॉप्टर्स बहुत घूमते रहते हैं। तो जो टीम का जो ये एक्सपीडिशन 1 महीने से अधिक समय तक चला और जो टीम ने जो रिपोर्ट किया कि क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ये कहा कि इम्प्रूवमेंट की और आवश्यकता है और माउंटेनियरिंग जो है 10 साल के लिए और बंद रखनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन था जिसको सरकार ने सुना और उस पर अमल किया। और फिर बाकी जो है नंदा देवी नेशनल पार्क का जो प्रबंधन है वो बिल्कुल हैंड्स ऑफ प्रबंधन है। हैंड्स ऑफ मतलब आपने बिल्कुल उसको प्रकृति पे छोड़ा हुआ है, वहां जाके ये नहीं है कि वहां आप कुछ कर रहे हैं और या कुछ वास स्थल में सुधार कर रहे हैं, हैबिटेट मैनेजमेंट कर रहे हैं या कुछ वाटर होल बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जैसे हम आम नीचे के क्षेत्रों में करते हैं, या कोई नई सड़क बना रहे हैं, कोई बटिया बना रहे हैं या ये सब कर रहे हैं। ये सब नहीं होता है वहां पे। टोटली बस हमको ये इंश्योर करना है कि वहां लोग ना जाएं, और लोगों का जाना वैसे भी क्योंकि इतना विषम है कि आसान नहीं है। तो एक नेचुरली प्रोटेक्टेड एरिया है ये। तो 10 साल बीतने के बाद अगला एक्सपीडिशन गया 2003 में और उन्होंने देखा कि सुधार और ज्यादा हुआ। ये बहुत ठंडे इलाके हैं, यहाँ कुछ भी सुधार होता है तो बहुत धीमी गति से होता है। आप सभी ने देखा है कि ठंडे इलाकों में पेड़ों की ग्रोथ, पौधों की ग्रोथ बहुत कम होती है, ग्रोइंग सीजन कम होता है। ये क्षेत्र जो है नंदा देवी का, इसके अधिकांश 6 से 8 महीने तक तो बर्फ के नीचे ही दबे रहते हैं। बहुत छोटा पीरियड मिलता है वहाँ पेड़ पौधों को ग्रो करने का। तो जो रिकवरी हो रही थी वो स्लो थी। तो 2003 में भी उन्होंने कहा कि अभी 10 साल के लिए क्लोजर और बढ़ा रहना चाहिए। और इसके बाद 2013 में अगला माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन जाना था, लेकिन इसकी तैयारी शुरू ही हो रही थी कि 2013 में हमारे यहाँ, आप सभी को जानकारी होगी कि केदारनाथ ट्रेजेडी हो गई थी 15-16 जून को, और जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। बहुत ही बड़ी दुर्घटना थी ये, बहुत ही बड़ी आपदा थी। तो देश ही लिया था पूरा इससे और बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो उस कारण से ये डिले हो गया और समहाउ ये 2015 में हो पाया ये डिकेडल मॉनिटरिंग एक्सपीडिशन। और ये बड़ा साइंटिफिक एक्सपीडिशन होता है। उन्हीं प्लॉट्स में जाके सब मेजरमेंट करते हैं वैज्ञानिक और सब कुछ किया जाता है। और ये भी एक सीख है हम सभी के लिए कि हमें अपने जो विशेषकर जो हमारे संरक्षित क्षेत्र हैं, सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बाकी दोनों भी, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। ये नहीं ठीक है कि हम जाएं और घूम के आ जाएं और बोले कि सब कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई पहले से बहुत सुधर गया है ये क्षेत्र, ऐसे वो काफी नहीं है। हम एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, हमारे पास वैज्ञानिक सूचना होनी चाहिए। कई बार हम लोग इस तरह की बात करते हैं, कोई घूमने गया थोड़े दिनों में कहेंगे अरे ये नेशनल पार्क तो बिल्कुल खत्म हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, जबकि उनके पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पे हमें हर चीज का वैज्ञानिक आधार पाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये डिकेडल एक्सपीडिशन, क्योंकि ये बहुत हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र है, यहाँ पे हर साल जाके मॉनिटरिंग करना संभव नहीं है।
किसी को वहां अंदर भेजना है तो उसकी बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए 10 साल में। और एक और चीज है कि यहाँ पे चेंज जो है बहुत धीमा है। अगर आप हर साल जाएंगे तो आपको कोई चेंज पकड़ में भी नहीं आएगा। जैसे हम बाघों की गिनती करते हैं देश में, 4 साल में एक बार करते हैं। कारण यही कि अगर हम हर साल करें तो इतना कम ग्रोथ होगी कि उसको हम ठीक से वैज्ञानिक तरीके से पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो ये एक आपके लिए लर्निंग है कि इस तरह की एक डिकेडल एक्सपीडिशन या इस तरह की मॉनिटरिंग प्रोग्राम होने बहुत ज़रूरी है। तो 2015 का जो एक्सपीडिशन था, इसमें जो मेन चीज़ पाई गई वो ये था कि मानवीय गतिविधियां अभी भी नहीं के बराबर हैं। बस कुछ थोड़े से शुरुआती हिस्सों में कहीं कहीं लोगों के जाने की कुछ एविडेंसेस मिले, और जिसका मेन रीज़न था कीड़ा जड़ी या यारसा गुम्बो का कलेक्शन। हिमाचल में संभवतः नहीं होता है, लेकिन उत्तराखंड और नेपाल में बहुत ज़्यादा होता है और इसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। इसके बाद तो इसको देखते हुए एक्सपीडिशन ने ये सजेस्ट किया कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन और बेहतर करने की आवश्यकता है, खासतौर से जो एंट्री पॉइंट हैं। 2 ही एंट्री पॉइंट है, या तो आप नदी के साथ जाएं, पर वो केवल आप एक्सपीडिशन मोड में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको पुल बनाना पड़ता है नदी पे। तो लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो शुरू में ही लाता गांव से चढ़ के, जहाँ पे रिज थोड़ी नीची है, रिज करीब 4000 मीटर ऊंची है, वहां पे क्रॉस करना पड़ता है। बहुत ही विषम रास्ता है और पत्थरों को पकड़ पकड़ के जाना पड़ता है। मुझे भी जब मैं वहाँ डीएफओ था तो वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और लोग इतने कम जाते हैं, बिल्कुल जीरो जाते हैं, मैं कहूँगा लगभग नहीं के बराबर, कि वहाँ के ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे याद है जब मैं धरासी, मतलब जो कि नंदा देवी नेशनल पार्क में रिज के रास्ते से घुसने पर पहली मेडो आती, करीब 3.5 पौने 4 हजार मीटर की ऊंचाई पे है। और मुझे याद है कि जब वहाँ पे छोटे तंबू लगा के, हम लोग छोटा ही ग्रुप में गए थे स्टाफ के साथ ही, और तंबू लगा के सो रहे थे, तो सुबह जब मैंने तंबू की जिप खोल के और बाहर झांका तो वहाँ भरल का एक झुंड खड़ा था, और वो हमें विस्मय से देख रहा था, जैसे उन्होंने, ऐसा लगा उनके बिहेवियर से जैसे उन्होंने पहली बार इंसान देखा। तो इतना कम वहाँ पे मानवीय व्यवधान है कि वहाँ के जानवर भी अभी, बल्कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2015 के एक्सपीडिशन के टाइम पे एक मस्क डियर, और आप लोग जो पहाड़ों में रहे हैं वो जानते हैं मस्क डियर, कस्तूरा मृग कितना शर्मीला जानवर होता है। दिन दहाड़े, दिन के मध्य में सारा स्टाफ जाके उनके कैंपिंग के स्थल के पास एक मस्क डियर घूम रहा था, विचरण कर रहा था आराम से, और उसको कोई चिंता ही नहीं थी कि चारों तरफ एक छोटा सा समूह इंसानों का है। तो वहाँ के जानवर भी जब लगातार बहुत लंबे समय तक इंसानों को नहीं देखते हैं, तो वो, उनमें भी एक क्यूरियोसिटी होती है इंसान देखने की, ऐसा ऐसा प्रतीत हुआ उनके बिहेवियर से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सजेशन थे इस डिकेडल एक्सपीडिशन के, और इसमें हमारा प्रयास रहता है, जैसे 15 के एक्सपीडिशन में यंग हमारे एक ऑफिसर हैं जो अभी डायरेक्टर राजा जी हैं, वो उस समय तो उनकी उम्र 30 साल के भी अंदर रही होंगी, तो वो भी गए इस एक्सपीडिशन में। तो हमारी कोशिश रहती थी कि हम एक कोई ना कोई अपेक्षाकृत सीनियर ऑफिसर को भी भेजें। तो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज था, उत्तराखंड और हिमाचल ये सब पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं, और इनको यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार का भी रहता है, ये आजीविका से भी जुड़ा हुआ है। तो उसमें यही था कि कुछ क्षेत्र हम इको टूरिज्म के लिए खोल सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही था कि केवल जो आउटर क्षेत्र हैं, जो पुरानी नंदा देवी आउटर सेंचुरी कहलाती थी, तो उसको वहां पे एक रेगुलेटेड मैनर में धनासी तक आपको पर्यटन अलाउ कर सकते हैं, और ये किया भी जा रहा है एक सीमित नंबर में। और बाकी जो है, जो मुख्य घटक हैं यहाँ के प्रबंधन के, वो यही है कि हैंड्स ऑफ अप्रोच ही कंटिन्यू रहेगी, और कोई हैबिटेट मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, पर रेगुलर साइंटिफिक मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। और मेरे विचार से अगले साल हम पुनः प्रयास करेंगे कि फिर से एक्सपीडिशन भेजें। 10 साल हो रहे हैं हमारी साइकिल के, हालांकि पिछले एक्सपीडिशन से 8 ही साल हो रहे होंगे, लेकिन हमारी जो पुरानी साइकिल थी उसके हिसाब से 10 साल हो जाएंगे। तो ये कुछ वहाँ के मुख्य वो हैं, वन जो शुरू के क्षेत्र में वन है। बाकी तो अधिकांश क्षेत्र जो हैं वो बुग्याली क्षेत्र हैं, एल्पाइन मेडोज हैं, और ज्यादा क्षेत्र जो है वो लगातार 12 महीने बर्फ के नीचे ही रहता है। भोजपत्र के जंगल हैं,
कैल के जंगल हैं, ये शुरुआती क्षेत्र में, आउटर सेंचुरी में। तो फर, भोजपत्र, और वो भी हाई एल्टीट्यूड फर, एबिस पिंडो नहीं है, स्पेक्टाबिलिस है वहाँ पे, और पाइनस वॉलिचियाना जो कैल है, ये मुख्य पेड़ हैं लोअर नेशनल पार्क में। तो जानवर जो जो एक्सपीडिशन से जो चित्र मिले हैं उसके वो हैं, थार है, भरल है, और मस्क डियर है। और ये कुछ कंपैरिजन्स हैं कि कैसे इन जो मुख्य जो मैमल्स हैं उनकी 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 आबादी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है इस एरिया में। तो आप देखेंगे या तो ये स्टेबल बनी है या जैसे भरल के केस में बढ़ी है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इनकाउंटर रेट बेस्ड है ये, तो बहुत प्रिसाइज नहीं है ये असेसमेंट, लेकिन जो वैज्ञानिक जाते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र इतना है कि जो हमारे मैनुअल तरीके होते हैं वन्यजीव आकलन के, जैसे ट्रांसेक्ट्स वगैरह, वो करना असंभव है। तो केवल एनकाउंटर रेट्स होते हैं, और उसके आधार पे भरल की संख्या निसंदेह बढ़ी भी लग रही है। बाकी कस्तूरी मृग वगैरह जो है वो स्टेबल है। अब जल्दी से 5 मिनट में मैं दूसरा क्षेत्र जो है वैली ऑफ फ्लावर्स, इसकी बात कर लूं। ये इसको भी 1982 में घोषित किया गया था, और छोटा सा पार्क है। ये भी एक वैली है जिसके चारों तरफ हाई रिज हैं, और इसको मशहूर किया फ्रैंक स्माइथ ने, जो कि ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे, बॉटनिस्ट भी थे। और उन्होंने, वो दरअसल कामेट जो उत्तराखंड की दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, नंदा देवी से मात्र करीब 50 मीटर छोटी है, 7,756 मीटर ऊंची है। तो उस पीक को स्केल करने का, ये बद्रीनाथ के पीछे के क्षेत्र में है, तो उस पीक को इन्होंने जब सक्सेसफुली स्केल किया फ्रैंक स्माइथ ने, तो लौटते समय इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, और दूसरे रास्ते में कुछ भटक गए, और रतबन पीक के बगल से ये टिपरा खड़क ग्लेशियर से होते हुए इस वैली में प्रविष्ट हो गए। जब ये यहाँ पहुंचे तो इन्होंने देखा यहाँ तो बहुत बहुत गजब का कि एल्पाइन मेडोज हैं, बुग्याल हैं, और उनमें बहुत तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। बुग्यालों में आमतौर पे फूल होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ उनका घनत्व ज्यादा ही था, और बड़ी सुंदर वैली है, बड़ी सीरीन वैली है। तो उन्होंने एक किताब लिखी अपने संस्मरण, वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये किताब उनका लिखना था, और ये वैली रातों रात पूरे विश्व में मशहूर हो गई, और नाम ही कुछ ऐसा था, वैली ऑफ फ्लावर्स, कि ये रातों रात मशहूर हो गई। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, इसके पास ही एक गांव है भ्यूंडार गांव, वहाँ के लोग और बाहर के भी चरवाहे यहाँ पे लगातार अपनी भेड़ बकरियां लाते थे। जो स्थानीय लोग हैं उनकी गाय भैंसें भी जाती थी, और जब एक बार ये पॉपुलर हो गया तो बहुत लोग आने लगे। लोग अपना तंबू गाड़ के इस वैली में आके कई कई दिन रुक रहे हैं, और ये सब चीजें होती रहती थी। किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं था, और इस वैली का भी कुछ उसी तरह का हश्र होने लगा जैसा नंदा देवी का था, कि गंदगी और बहुत ज्यादा मानवीय व्यवधान। तो सन 82 में जब तक ये रेगुलर कैंपिंग चली, लेकिन जैसे ही ये नेशनल पार्क बना तो ग्रेजिंग और कैंपिंग पूरी तरह से बैन कर दी गई। आज की तारीख में यहाँ पे केवल डे विजिटर्स अलाउड हैं, जो पैदल जाते हैं, अपना दिन का कुछ समय बिता के वापस आ जाते हैं। काफी मुश्किल होता है क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड एरिया है। इस पार्क की मैंने बताया, इसकी शुरुआत ही 3000 मीटर से होती है, और शुरू में ही जैसे ही आप पार्क में प्रविष्ट होते हैं, शुरू का क्षेत्र, इसमें भी कुछ फर का जंगल है, और उसके अंदर से जो रास्ता जाता है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, और काफी टूरिस्ट यहाँ से आते हैं जिनको पहाड़ों की बिल्कुल आदत नहीं होती, पहाड़ों में चलने की, तो वो काफी मुश्किल उनको होती है उस रास्ते में चढ़ने में। पर खैर, जैसे जैसे वो पहुंचते हैं और फिर प्रकृति की वहाँ छटा देख के उसका आनंद लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समय लोग नहीं बिता पाते हैं। और यहाँ पे जैसा ज्यादातर एल्पाइन मेडोज में होता है कि पुष्प जो होते हैं यहाँ पे मुख्यतः जुलाई अगस्त के महीने में ब्लूम करते हैं, तो ये बारिश का मौसम भी होता है, और लोग काफी खराब मौसम में यहाँ घूमने आते हैं, मैं कहूँगा। और बल्कि मुझे एक याद आ जा रही है, बहुत मशहूर किताब है फ्लावर्स ऑफ द हिमालयाज, पॉलिनन एंड स्टेंटियन की, जिसको हमने बहुत इस्तेमाल किया है। जो लोग भी अल्पाइन क्षेत्रों में घूमते हैं वो जरूर इस्तेमाल करते हैं इस किताब को। तो पॉलिनन, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध बॉटनिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि, उन्होंने एक लाइन लिखी है उसमें कि अगर आपको हिमालय की जो फ्लावर्स हैं, वहाँ की जो पादप जगत की खूबसूरती को देखना है, तो आपको भीगना तो पड़ेगा ही। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको बरसात में ही मिलेगा ये सब, तो आपको भीगे बगैर रह नहीं सकते। तो
बहरहाल ये सूक्ष्म इतिहास था और ये बड़ा क्रूड सा मैप है। अगर आप देखें तो ये जो काली लाइन है ये नेशनल पार्क है, और ये नदी जो है जिसको स्थानीय भाषा में लोकल लोग इसको पुष्पवती गंगा बोलते हैं। नाम भी इसका बड़ा खूबसूरत है। और पर यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कि सीधी तरह से वैली से जुड़ी नहीं है लेकिन परोक्ष रूप से डेफिनेटली जुड़ी हुई है। वो ये है कि यहाँ बगल में हेमकुंड साहिब का सिखों का गुरुद्वारा है, जो कि 4,300 मीटर की ऊंचाई पे है। बहुत ही ऊंचाई पे है, इतना ऊंचा कोई गुरुद्वारा नहीं होगा। तो वो बिल्कुल उसका और वैली का रास्ता जो है वो कॉमन है वैली के गेट तक, और उसके बाद ये रास्ता बदल जाता है। तो घांगरिया स्थान है जहां से वैली का रास्ता और हेमकुंड साहिब का रास्ता अलग होता है। घांगरिया की ऊंचाई 3,000 मीटर है। तो जो हेमकुंड साहिब भी जून से अक्टूबर तक खुलता है, और बहुत बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु और अन्य श्रद्धालु भी इस क्षेत्र में दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये जो हमारा रूट है, ट्रैक रूट है, पुलना से लेकर घांगरिया 10 किलोमीटर और वहां से हेमकुंड 6 किलोमीटर, जो पूरा लगातार चढ़ाई का रूट है, इसमें बहुत ज्यादा संख्या में टूरिस्ट चलते हैं। उसमें से कुछ टूरिस्ट वैली ऑफ फ्लावर्स के भी होते हैं, लेकिन इनका प्रतिशत मैं कहूंगा 10 से 15% होगा। बल्क टूरिस्ट जो है वो हेमकुंड जाता है। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में अगर टूरिस्ट चलेगा, पीक सीजन में 5 से 10,000 लोग डेली इस ट्रैक रूट पे जाते हैं। तो बहुत गंदगी है इस रास्ते में, और उसका कैसे सोल्यूशन किया गया वो एक प्रबंधन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैंने सारा परिवर्तन देखा 90 के दशक में गंदगी वाला, और उसके बाद 10 साल बाद जो सुधार किए गए उसके बाद भी। ये वैली का विहंगम दृश्य है। रतवन पीक आपको पिछाई दिखाई दे रही है, 6,300 मीटर ऊंची, 6,100 मीटर ऊंची, और ये पुष्पवती गंगा नदी है। और आप इसमें इम्पेशंस सुलकाटा का फ्लावर देख रहे हैं। इस तरह से करीब 450 प्रजातियां वहां पाई जाती हैं। एक और मुद्दा है वहां पे प्रबंधन की दृष्टि से कि कुछ पौधे वहां पे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, और उनमें से एक पौधा है जो बाईं तरफ आपको दिख रहा होगा, सफेद फूल है, पॉलीगोनम पॉलिस्टैकिया। अभी नाम बदल गया इसका, पर्सिकेरिया पॉलिस्टैकिया हो गया। ये शुरुआती जो वैली को जब आप में शुरुआती हिस्से में जब चलते हैं, और जैसे ही आप वन क्षेत्र के बाहर निकलते हैं और थोड़ा खुले एरिया शुरू होते हैं, वहां पे ये एक अच्छे खासे क्षेत्र में दोनों जो ट्रैक रूट है उसके दोनों तरफ यही दिखता है। और लगातार, और एक चीज और है कि वहां जो लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, उसमें से बहुत कम पर्यटक होते हैं जो जिनकी बॉटनी या इस तरह की रुचि होती है। ज्यादातर तो नाम से आकर्षित होके ही आ जाते हैं, और उनको बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं होता है कि हिमालय की वनस्पति कैसी होती है, हिमालय में पौधे पेड़ फूल कैसे दिखते हैं। तो वो क्योंकि नाम ऐसा है वैली ऑफ फ्लावर्स, वो समझते हैं कि जैसे फूलों का कोई बगीचा होगा। तो जब वहां पहुंचते हैं, और वहां क्योंकि जो अल्पाइन पौधे हैं ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं, उनके फूल भी छोटे होते हैं, तो उनको लगता है कि हम तो सोच रहे थे यहाँ की गुलाब डेलिया के बड़े बड़े फूल होंगे और यहाँ कुछ छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं। तो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। और उसमें फिर ये जो शुरुआत में ये जो पौधा दिखता है, ये करीब 1 से 2 मीटर ऊंचा होता है और बिल्कुल सफेद कर देता है उसको। और लोग, स्थानीय लोग क्या है कि जब 1982 में ग्रेजिंग बैन हुई, तो उस समय उन्होंने काफी ये दुष्प्रचार किया कि ग्रेजिंग बैन हो गई, इसलिए वैली में अब फूल नहीं होते हैं, और अब सब वीड्स होती हैं। और इस पौधे को, जो कि पूरी तरह से हमारा प्राकृतिक पौधा है, पॉलीगोनम हिमालय का ही नेटिव पौधा है, उसको एक वीड का कर दिया गया। और ये हुआ कि वीड तो निकलनी चाहिए, और विभाग ने भी इस प्रेशर में आके वीड कुछ क्षेत्रों से, विशेषकर जो ट्रैक रूट के दोनों तरफ बहुत थोड़ा सा क्षेत्र, यहाँ इसकी थोड़ी कटिंग करके ताकि अन्य फूल भी दिखाई दे सकें, वो एक प्रैक्टिस जो थी वो वहां पे की जाने लगी। लेकिन फिर मुझे याद है जब मैं वहां पे प्रभागी वनाधिकारी था, तो हमने सोचा कि भाई ये ऐसे कहने सुनने वाली बात नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक आधार होना बहुत जरूरी है। तो हमने भारतीय वन्यजीव संस्थान से निवेदन किया कि आप एक करिए, शोध करिए कि ये क्या है मामला वीड का। उन्होंने शोध किया और 95 में उनके शोध के रिजल्ट्स आए। और उन्होंने क्या किया कि वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसमें ऑलरेडी करीब 10 साल से ग्रेजिंग नहीं हो रही थी, 83 से 93 तक कोई ग्रेजिंग नहीं हुई, आगे भी नहीं हो रही है, तो उसको कंपेयर किया रिज के दूसरी तरफ एक और बुग्याल, खीरो बुग्याल, जहां पे पूरी ग्रेजिंग हो रही थी।
दोनों को जब कंपेयर किया और पूरा साइंटिफिक तरीके से प्लॉट्स ले करके और हर तरह से काम किया, तो उसमें ये रिजल्ट निकला कि वैली ऑफ फ्लावर्स की जो वेजिटेशन डाइवर्सिटी है वो ग्रेजिंग वाले मेडोज से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वो था, और उसके बाद से फिर करेक्टिव स्टेप्स हो गए, और जो हम पहले प्रबंधन करते थे वो बंद किया गया। तो इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंधन, हमारे प्रबंधन का आधार विज्ञान होना चाहिए, कहीं सुनी बातें नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो स्टडी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बता रहा था प्रबंधन का, कि गार्बेज, जिसको आप कूड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा टूरिस्ट इस रास्ते में जाता था, जैसे मैं बता रहा था, वो वैली ऑफ फ्लावर्स में नहीं घुसता था, लेकिन वैली ऑफ फ्लावर्स के बाहर के क्षेत्र में, उससे बिल्कुल लगे क्षेत्र में बहुत गार्बेज था। इतने लोग, सोचिए आप, जहाँ एक ट्रैक रूट जिसमें लगातार चढ़ाई है, जहाँ 5 से 10 हजार आदमी पीक सीजन में चल रहा हो, तो वो थकेगा। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मैदानों के क्षेत्र, पंजाब के लोग या हरियाणा उत्तर प्रदेश के लोग, जो कभी पहाड़ में चले नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में थक जाते हैं, सांस फूल जाती है। तो बहुत सारे यहाँ पे दुकानें स्थानीय लोग लगा देते थे, शैक्स टाइप की दुकानें, बिल्कुल एक एक पॉलिथीन डाला ऊपर, 2 डंडे गाड़े, और कोल्ड ड्रिंक और आलू पराठा और इस टाइप की चीजें बेचने लगे। और खूब गंदगी, क्योंकि वो खाली बोतलें या खाली प्लास्टिक के कैंस या टेट्रा पैक्स, उनको नीचे ले जाने में ज्यादा कॉस्ट थी, तो वहीं फेंक दो सबसे अच्छा। तो ये इस टाइप की एक प्रवृत्ति थी, और पूरा ये क्षेत्र जो है लिटरिंग से भर गया। दूसरी चीज, यहाँ खच्चर चलते हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो चढ़ नहीं पाते हैं, वो खच्चरों की लींद और उनका पेशाब पूरा रास्ते में गंद ही गंद। कई जगहों पे जहाँ पे ऐसा होता है वहां पे ये प्रॉब्लम होती है। तो 2001-2 जब उत्तराखंड बन गया, और तब जो एक हमारी अधिकारी हैं ज्योत्सना सितलिंग मैडम, वो वहाँ पे कंजर्वेटर थी, उन्होंने लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ एक डायलॉग शुरू किया, और ये हुआ कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा प्रबंधन करें कि ये कूड़ा और गंदगी खत्म हो। तो लोगों ने भी काफी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और एक समिति बनाई गई और सरकार से अनुमोदन लिया गया, जो एक सेस लेगी, छोटा सा सेस हर टूरिस्ट से। मैं भूल गया कि कितना आज की तारीख में ले रहे हैं, पर छोटा ही सेस था उस समय, शायद 10 रुपए या 15 रुपए टाइप का लेते थे। और उस सेस से उन लोगों ने गांव के ही लोगों को पे करके लगातार इस क्षेत्र की सफाई, और जो कूड़ा जो होता था, जो टेट्रा पैक्स का या प्लास्टिक की बोतलों का, पानी की बोतलों का, उसको लोग जमा करते थे। और जो खच्चर, क्योंकि कई लोग, ये जो खच्चर जो चलते थे, उनके माध्यम से बोरों में भर के नीचे लाया जाता था, और उसको नीचे जो रोड हेड है वहां पे संग्रहण किया जाता था, और फिर ट्रकों के माध्यम से इसको दिल्ली या अन्य शहरों में भेज के इसकी रिसाइकलिंग करानी शुरू की गई। तो ये बड़ा पुराना एग्जाम्पल है गार्बेज मैनेजमेंट का, और पूरा लोकल इन्वॉल्वमेंट के साथ। और आज भी वहां की जो भ्यूंडार गांव की जो ईडीसी है, इको डेवलपमेंट कमेटी, इस काम को बखूबी कर रही है, और वन विभाग इसमें बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आप कैसे गार्बेज प्रबंधन करेंगे। तो उनको, ज्योत्सना मैडम को इसके इसके कारण प्रधानमंत्री अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट की दृष्टि से कदम था। और जैसे मैंने बताया, देखिए दोनों ही क्षेत्र ये ऐसे इंटरेस्टिंग क्षेत्र हैं। नंदा देवी 40 साल से प्रैक्टिकली ह्यूमन एंट्रेंस नहीं हुई है वहां पे, और वैली ऑफ फ्लावर्स 40 साल से वहां कोई ग्रेजिंग नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसे क्षेत्र हमारे हिमालय में नहीं है। तो जहां इतने लंबे समय तक हम पूरी तरह से उनको एक प्राकृतिक तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो वहां पे कितने संख्या में लोग जा सकते हैं उस पर भी कैप लगा था। हालांकि हाई कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आह्वान पे किया गया था काम। इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया घांगरिया में, ताकि जो लोग आए वो पहले समझ सकें कि हिमालय क्या है और वहाँ की वनस्पति कैसी होती है, और जो फूल वहाँ पे देखें वो क्या है। और तो इस तरह से इस क्षेत्र का प्रबंधन हो रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स का, और ये हमेशा की तरह आज भी पूरी दुनिया से पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। तो मैं यहीं पे अपनी बात को समाप्त करूंगा, और अगर कोई क्विक क्वेश्चंस हैं, कुछ है तो उसके लिए मैं 1-2 मिनट का समय
वो कर सकता हूँ। बाकी मेरी एक थोड़ी देर में एक मीटिंग है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तो क्वेश्चंस को नहीं एंटरटेन कर पाऊंगा, लेकिन जल्दी से अगर एक दो क्वेश्चंस कोई पूछना चाहे तो उनका स्वागत है। थैंक यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन किसी को लग रहा है? आपके पीसीसी महोदय भी दिखाई दे रहे हैं सर। बिल्कुल सर। आवाज नहीं आ रही राजीव, अनम्यूट। Thank you, Dhananjay. That was really wonderful. Listening to you has always been, a pleasure, and no wonder our audience is so mantrabukh that they don't have any questions for you. I wish I could come to GHNP. GHNP में आया जरूर हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं घूमा है, तो इच्छा तो बहुत है। फिर कभी समय निकाल के आऊंगा। नहीं, जरूर जरूर। Most welcome anytime. सर, तो क्योंकि आपने सर बहुत अच्छे से अपना जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सर नंदा देवी नेशनल पार्क का और वैली ऑफ फ्लावर्स का जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है सर, वो आपने हमारे साथ शेयर किया सर। हमारे को जो उसका जो ज्योग्राफी है, जो हिस्ट्री है, जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स है सर वैली ऑफ फ्लावर्स का और हेमकुंड साहिब के साथ में उसके साथ लगता हुआ, जो कि जैसा कि हमारे भी यहाँ पे जो नेशनल पार्क्स होते हैं या कोई भी सेंचुरीज हैं, दे ऑल आर आल्सो रिलीजियस प्लेसेस, दे गॉट रिलीजियस टूरिज्म भी इन सब में काफी ज्यादा होता है। तो उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला सर। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी सर आपसे हमें जो है इस तरह का जो मौका सर मिलता रहेगा कभी ना कभी सीखने का सर। आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है सर वो आपने हमारे साथ शेयर किया सर, मैं आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर। मैं पीसीसी वाइल्ड लाइफ जो है राजीव सर, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने हमारे साथ अपना समय दिया सर और उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि ऐसा हमें जो है ऑनलाइन एक्सपर्ट लेक्चर सीरीज करनी चाहिए। आप हमारे साथ यहाँ पर यदि 25-26 को आ पाते तो बहुत अच्छा लगता है सर। पर आपने जो भी हमारे साथ शेयर किया सर इन्फॉर्मेशन सर, उसके लिए हम बहुत तहे दिल से बहुत बहुत आपके आभारी हैं सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, माय प्लेजर कंप्लीटली। Thank you, Dhananjay. Thank you so much. थैंक यू राजीव, थैंक यू। थैंक यू सर।